Hi everyone. Today we are going to do a determination of income and employment from NCRT. So we are doing this series where I do NCRT with you so that you don't feel missed out. And NCRTs are very important not only for entrance exams or specifically CUET, but even for your CBSE. A lot of questions in board exams and a lot of case studies in board exams come directly from NCRT. And some things are there in NCRT which are probably missing in the other books which schools are referring. So I feel that you should know the basics. I'm not saying any book is good or bad. All I'm saying is NCRT is a must, and rest of the books which are referred by any school whatsoever would complement your studies, but it would not substitute. So if you know what I mean, NCRT is a must, and a lot of students have this question that for Indian economy, NCRT is okay, but do we have to do NCRT even for macroeconomics? So yes, guys, it's a big caps. Yes, that yes, you have to do NCRT of macroeconomics. It's non-negotiable. So yeah, we are doing that, and we have started with macroeconomics. Today we are going to do determination of income and employment, and this particular chapter will be divided into two separate videos. So yeah, let's just quickly begin. Excuse me, guys, I'm suffering from cold and cough, so it might happen in between that you caught me coughing and the sound may irritate you, so you can pause for that while. And now let's go. Okay, so yeah, so we haven't covered national income, but the chapter has already covered national income price level. And what they're saying is that the basic objective of macroeconomics is to develop theoretical tools called models. So models, when we say economic models, what do we mean by economic models? The models are theoretical tools, okay, capable of describing the process which determines the value of these variables. So there are certain variables, and what happens? See, if you say X and Y, so why do we associate maths with economics? Because for the complex economic situations, you develop it into a mathematical model and then you find the value of the variables. And in the process of finding the value of the variables, you explain the process, economic process. So, which is why we take help of models. Okay. So, yeah. Specifically, model attempt to provide theoretical explanation to questions such as causes, uh, what causes periods of slow growth or recessions in the economy or increment in the price level or rise in the unemployment. So these are the issues which happen in your day-to-day life, and models help you in determining those specific values, like what is happening, why is it happening. So it is difficult to account for all the variables at the same time. Okay, agreed. So, thus, when we concentrate on the determination of a particular variable, we must hold the values of all other variables constant, right? So, most of my students ask this question that, in economics, what is the point of studying economics when we, base it on a lot of assumptions, and what we read in the book is not what happens in the real life, because not everything is constant in real life, right? As in the books. But yeah, excuse me. So it is important for us to assume certain things and to keep certain variables constant. Why? They are stating the reasons that it is not possible to find the value of all the variables at the same time. So if we need to find value of the one variable, let's keep the other variables for the time being constant, right? Just to simplify, we are simplifying the complex processes. Otherwise, you will never find a solution. Okay, so that's the case, and that is what we call as assumption of ceteris paribus. What is ceteris paribus? Finding value of one variable at a time and keeping other variables constant. Okay, so other things remaining equal. So you can think of the procedure as follows. In order to solve the values of two variables x and y from two equations, so you have two equations, say 3x plus y is equal to 10 and x minus 2y is equal to 5. Suppose you have, hypothetically I'm saying, you have two equations and two variables x and y, and these are the two equations. So what they're saying is that first of all you'll keep y constant to find the value of x, and then you put value of x in the equation to find value of y, right? So you keep one variable constant to find another variable value. Okay, in this chapter we deal with the determination of national income under the assumption. So सी हाउ ब्यूटिफुली ये लोग हमको लेकर आए हैं इस चीज पे कि इन्होंने क्यों अज्यूम करा है, तो इन्होंने पूरा समझाया है, विच इज आई से
फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी स्टूडेंट्स टेंड टू इग्नोर एंड डायरेक्टली वो शुरू करते हैं, चलो 4.1 पढ़ लो, चलो पहले पैराग्राफ से, पहले टॉपिक से स्टार्ट कर लो। But I always say, read the first paragraph. There's a reason to it. ओके इतने ब्यूटिफुली स्टोरी की फॉर्म में पे रोकर ये लोग आपको बता रहे हैं कि क्यों एक वेरिएबल, बेसिकली आपका डाउट सॉल्व कर रहे हैं कि क्यों हम वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं और क्यों अज्यूम करते हैं कि अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं। वो यही बता रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट इन इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन, इतने सारे वेरिएबल्स हैं। तो एक टाइम पे एक वेरिएबल फाइंड करने के लिए या डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए हम अज्यूम करते हैं फिक्स्ड प्राइस, क्योंकि अगर प्राइस भी चेंज करेगा तो फिर आप एक वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, राइट? सो फिक्स्ड प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी, दैट आर द assumptions. Okay, so the theoretical model used in this chapter is based on the theory given by John Maynard Keynes, which is excuse me, we are talking about Keynesian. We are talking about Keynesian economics. Okay, so in this chapter on in the chapter of national income accounting, we came across the terms like consumption, investment, or total output of final goods and services in the economy, which is what we call as GDP, right? So these terms have dual connotations. What do we mean by dual connotations? In a way, dual type of meaning. Okay, so in chapter 2, they were used in accounting sense. So now you have to see, I'll explain you this paragraph when we'll come to the formula or the equation, because this is very important. Okay, but let's continue for the time being. And I'll come back to this particular paragraph. Don't worry. Let's resume reading. So, okay. Okay, so basically, let me explain it to you right away. Okay, when we say aggregate demand का मतलब क्या हुआ? डिमांड तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी थी। डिमांड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी उसका मतलब क्या था? एक इंडिविजुअल आदमी की डिमांड एक इंडिविजुअल गुड के लिए, कि अगर आपको टॉफी चाहिए तो आपकी टॉफी की डिमांड क्या है, आप इंडिविजुअल हो और आपकी एक प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, वो हम माइक्रो लेवल पे देख रहे थे। मैक्रो लेवल पे एग्रीगेट डिमांड क्या क्या मतलब होता है? क्या एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि मेरी सारे गुड्स की डिमांड क्या है? नहीं, ये भी एग्रीगेट डिमांड नहीं होता। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में, जितनी भी पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है, जितने लोग हैं उन सब की सारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्या डिमांड है, राइट? सो आपकी ओवरऑल डिमांड क्या है टोटल, से चाय की, राशन की, कार की, सर्विसेज की, बच्चों की एजुकेशन की, बेसिकली आपकी टोटल डिमांड क्या है? एंड ऐसी जितनी पॉपुलेशन है सबकी सम अप करके टोटल डिमांड, बेसिकली सारे लोगों की, सारे प्रोडक्ट्स की टोटल डिमांड या सारे सेक्टर्स की, ठीक है। अब पूरी पॉपुलेशन को आप कैटेगराइज कर दो, तो हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं कुछ सेक्टर्स में। जैसे कि हम बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की, तो हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड क्या है? टोटल डिमांड, जितने भी हाउस होल्ड है उनकी टोटल प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज की क्या डिमांड है। फिर हम बात करते हैं कि जितनी भी फर्म्स है उनकी टोटल डिमांड क्या है। फिर हम बोलते हैं गवर्नमेंट की टोटल डिमांड क्या है, एंड हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की टोटल प्रोडक्ट्स की टोटल डिमांड क्या है, ठीक है। तो अब अगर हमें एग्रीगेट करना है और एग्रीगेट डिमांड पे पहुंचना है, तो हाउस होल्ड्स का हमें टोटल डिमांड कैसे पता चलता है? कंजम्पशन से, कि उन्होंने कंजम्पशन पे कितना एक्सपेंडिचर किया, जितना खर्चा किया उतनी डिमांड की होंगी सारे प्रोडक्ट्स की। तो हम कोई क्लासिफाई नहीं कर सकते कि अच्छा आप शर्मा फैमिली ने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा किया, या गोयल फैमिली ने कितना किया, या कुछ भी रैंडम एक्स वाई जी, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल हाउस होल्ड ने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उनका कितना आया, ठीक है, ये हमें सी कॉम्पोनेंट से पता चलता है। देन फर्म्स, टोटल फर्म्स इकोनॉमी में सारा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कितना करेंगी, वो हमें पता चलता है थ्रू इन्वेस्टमेंट। सो आई, ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा करके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके पता चलता है कि उनका टोटल डिमांड कितना रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड एक्सटर्नल सेक्टर का कैसे पता चलता है? नेट एक्सपोर्ट्स की, एक्सटर्नल सेक्टर ने कितना डिमांड किया, यानी नेट एक्सपोर्ट कितने हुए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में। तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड का टोटल करने जाऊं, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ से मुझे क्या पता चली कि मैंने 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर दी, उन सबका मैंने एक्सपेंडिचर देखा, क्योंकि ऑब्वियसली इमेजिन आप अपने आप को कि आप
टॉफीज चॉकलेट से अपने घर का कितना डिमांड कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल, वो आपको कैसे पता चलता है कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, राइट? तो ऐसे ही सबका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। तो जब मेरे को टोटल करना है कि एग्रीगेट डिमांड कितनी है सारे सेक्टर्स की, ये तो इंडिविजुअल सेक्टर की है ना, हाउस होल्ड सेक्टर की टोटल हर गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी है, अब मेरे को टोटल डिमांड देखनी है इकोनॉमी में हर सेक्टर की, हर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या डिमांड रही है, वो मुझे पता चलेगा बाय सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स, राइट? तो अब ये इक्वेशन आपको थोड़ी फेमिलियर नहीं लग रही? मुझे तो लग रही है। कहाँ से? नेशनल इनकम चैप्टर में एक्सपेंडिचर मेथड में जब मैं कैलकुलेट कर रही थी जीडीपी को, तो भी इक्वेशन थी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स, सेम इक्वेशन थी। तो अब नॉर्मली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आता है कि एडी और जीडीपी कैसे डिफरेंट है, यानी जीडीपी ही एग्रीगेट डिमांड है हमारी, क्योंकि ये तो जीडीपी देता है आपको, तो इस जीडीपी और एडी, सो यहाँ पे डिफरेंस जो आता है वो आता है कॉनोटेशन का, ठीक है? इसीलिए कह रहे हैं ये जो टर्म्स है इनकी डुअल कॉनोटेशन है। डुअल कॉनोटेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में हम जो बात करते हैं बेसिकली हम आगे आने वाले साल की बात कर रहे हैं, हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कि हमें एक एस्टिमेट है कि हाउस होल्ड टोटल खर्चा इतना करेंगे, टोटल डिमांड इतना करेंगे। सो प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लान किया हुआ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लान्ड नेट एक्सपोर्ट्स, राइट? सो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्स एंटे भी कहते हैं। एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? बेसिकली एंटिसिपेशन मान लो इसे। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, दो टर्म होते हैं, एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटे। सो मैं कैसे याद रखती थी अपने स्कूल टाइम में? एक्स एंटे, एंटे से मैं लगाती थी एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब ये मैं लगा लेती थी कि आई एम एंटिसिपेटिंग कि क्या प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा, टोटल कितनी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड होगी, अभी हुई नहीं है, हमने बस ये पता है कि प्लान कितनी कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर कितना प्लान कर रहा है, इन फर्म सेक्टर कितना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लान कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? दिस इज ऑल प्लानिंग। व्हाट एक्चुअली विल हैपन विल वी विल गेट टू नो इट थ्रू जीडीपी और थ्रू दिस फॉर्मूला। तो ये क्या होता है? ये एक्स पोस्ट होता है। पोस्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, याद रखो कि पोस्ट इवेंट सब हो गया, पोस्ट दैट इवेंट क्या हुआ, एक्चुअल आउटकम क्या हुआ, ठीक है? इसीलिए हम कह रहे हैं नेशनल जो आपका नेशनल इनकम है, ये नेशनल इनकम की आइडेंटिटी जो जीडीपी एमपी लाता है एक्सपेंडिचर मेथड, ये अकाउंटिंग आइडेंटिटी होती है। अकाउंटिंग आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में कुछ भी का मतलब क्या होता है कि हो चुका है इवेंट, अब एक्चुअली एक्सपेंडिचर कितना हुआ, यानी एडी था कि आप प्लान कर रहे थे कि एग्रीगेट डिमांड इतनी होगी सेक्टर्स की, एक्चुअल हुई नहीं हुई वो नहीं पता। पर जो जीडीपी एमपी है वो पिछले साल ये सब एक्सपेंडिचर हो गया है, अब हम उससे देख रहे हैं कि जीडीपी कितना रहा। तो ये अकाउंटिंग आइडेंटिटी है, एंड यही डिफरेंस होता है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट में। सो आपका एग्रीगेट डिमांड एक्स एंटे है, एंड आपका जो जीडीपी का इक्वेशन है नेशनल इनकम में, वो एक्स पोस्ट है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इक्वेशंस ऑफ एडी एंड जीडीपी एमपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि दोनों ही सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स है, सो आपको सिंपल जवाब देना है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है टोटल, तो यानी वो एक्स एंटे इक्वेशन है, वेयर एज जो आपका जीडीपी एमपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड का इक्वेशन है वो एक्स पोस्ट इक्वेशन है, वो एक अकाउंटिंग आइडेंटिटी है, ठीक है? ये डिफरेंस आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखने में बहुत छोटा पैराग्राफ लगता है, डुअल कॉनोटेशन हार्डली एक छोटा सा वर्ड है यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन अब आपको इसका मतलब पता है डुअल कॉनोटेशन क्या होता है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स, दो तरह के मतलब होते हैं, डुअल कॉनोटेशन होता है एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटे, राइट? डिपेंडिंग कि अगर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स दिया है, अगर वो आपका एक्स एंटे है तो यानी वो एडी का इक्वेशन है, और अगर वो एक्स पोस्ट है तो वो नेशनल इनकम का इक्वेशन है, एंड ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद I'll again bring up the red pen and let's continue. Okay, so in chapter 2 accounting sense में यूज किया है denoting the actual values of these terms measured by the activities within the economy in a certain year. We call these actual or accounting values ex post. Okay, so ex post भी बोलते हैं हम इसको, और यही मैंने बताया, पोस्ट मतलब इवेंट हो चुका है, पोस्ट दैट इवेंट क्या क्या हुआ है, ठीक है? देन दीज टर्म्स हाउएवर कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट कॉनोटेशन
अब डिफरेंट कॉनोटेशन क्या होती है अगर हम प्लान वाला लेंगे, कि कंजम्पशन में डिनोट नॉट व्हाट पीपल एक्चुअली हैव कंज्यूम्ड इन अ गिवन ईयर, बट व्हाट दे हैड प्लान्ड टू कंज्यूम। ठीक है, सो अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है मुझे, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कॉनोटेशन पे डिपेंड करता है। एक हो सकता है कि वो एक्चुअल कंजम्पशन है लोगों की, लेकिन ये भी तो होता है कि अगर आपने मुझे दिया है तो आप मुझे अपनी प्लान्ड कंजम्पशन बता रहे हो आगे की, कि आपने कितना प्लान किया था कंजम्पशन। सो अगर प्लान्ड कॉनोटेशन है तो एग्रीगेट डिमांड हो गया, यानी एंटिसिपेटेड हो गया एक्स एंटे। वेराज अगर ये हो गया तो जीडीपी हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड से अकाउंटिंग आइडेंटिटी हो गया, यानी एक्स पोस्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आई होप द डिफरेंस बिटवीन एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटे इज क्लियर फॉर लाइफ टाइम, एंड याद रहेगा आपको ये। ओके, एंड आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल। यू कैन कॉमेंट, बिकॉज मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ, बिकॉज मेरी आवाज नहीं निकल रही है बहुत ज्यादा, बट या जस्ट मैनेज, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम रियली वर्किंग ऑन इट। या, so similarly, investment can mean the amount a producer plans to add to her inventory. So all these are planned expenditure, planned investment, planned consumption expenditure, which is why it is a part of aggregate demand. Okay, now this is a very beautiful example and it does come in your exams. So please highlight it. Suppose the producer, okay, hold on. Suppose the, what is happening? Suppose the producer plans to add rupees 100 worth of goods to her stock by end of the year. ओके, तो आप प्रोड्यूसर है, आपने प्लान किया कि आप 100 रुपए के गुड्स ऐड करोगे अपने स्टॉक में एंड ऑफ द ईयर तक। ठीक है, तो आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 100, क्योंकि आपने प्लान कर लिया कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे गुड्स में। सो आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट यानी एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आपका हुआ, एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 100। ठीक है, however, due to an unforeseen upsurge of demand for her goods in the market, supposedly ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप प्रोड्यूसर हो मास्क के, ठीक है, N95 मास्क। सबको पता है कोविड में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, तो जब कोविड नहीं आया था उस ईयर आपने प्लान किया था कि रुपीज 100 वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट आप करोगे N95 मास्क में, तो वो आपका एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट था। लेकिन सडनली कोविड आया, एक अनफोर्सीन, अनफोर्सीन यानी आपको जो नहीं पता था, क्योंकि अगर पता होता तो प्लान्ड होता ना। अनफोर्सीन अपसर्ज था डिमांड में आपके गुड्स का, तो इस वजह से क्या हुआ, आपकी सेल्स एक्सीड कर गई एंड आपने बेसिकली जो आपने प्लान किया था सेल करने को, आपको अब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा डिमांड मीट करने के लिए वो चीज यूज करनी पड़ी। सो शी हैज टू सेल वर्थ 30 फ्रॉम हर स्टॉक। सो यू प्लान कि ईयर एंड में, ये ईयर एंड होगा, आपके 100 वर्थ ऑफ मास बचेंगे, रुपीज 100 के मास बचेंगे। पर क्योंकि डिमांड बढ़ गई तो आपके 30 तो यूज कर लिए, 30 वर्थ के मास, तो आपके एक्चुअल में कितने बचे? 70 बचे, रुपीज 70 वर्थ ऑफ गुड्स बचे, स्टॉक बचा। ठीक है, तो आपकी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कितनी थी? साल के शुरू में प्लान्ड इन्वेस्टमेंट थी आपकी 100, लेकिन आप विच इज एक्स एंटे, और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हुई आपका? एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना आया? एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका खाली 70 आया। ठीक है, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं, और यही एग्जाम्पल एज इट इज क्वेश्चन में आ जाता है, डिजिट्स भी नहीं चेंज करते, ट्रस्ट मी। ठीक है, so her planned investment is rupees 100, whereas her actual or ex post investment is rupees 70 only. ठीक है, तो ex ante, ex post, okay, we call the planned values of the variable consumption as ex ante. In simple words, ex ante depicts what has been planned and ex post depicts what actually happened. Okay, this is what I've been explaining to you since the time we have started the paragraph. And in order to understand the determination of income, we need to know planned values of different components of AD. So, जब भी हमें determine करनी है income, ठीक है, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें जानना है, तो उस टाइम पे हम लोग प्लान्ड वैल्यू यूज करते हैं। सो हम केनेजियन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, ये कुछ चीजें देख लो, केनेजियन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, एडीएस में एक्स एंटे वेरिएबल हम यूज करते हैं या फिर हम प्लान्ड वेरिएबल यूज करते हैं। प्लीज ये कीवर्ड्स ध्यान में रखते हुए चलिए। ओके, सो अब कंपोनेंट्स क्या थे आपके? मैं आपको ये कराने से पहले ही एक ब्लैंक पेपर पे समझाना चाहूंगी ये चीज आपकी ओवरऑल एडीएस की। जस्ट होल्ड ऑन।
So we'll continue reading the NCRT, but before we start, I would say, first of all, I would want to explain the basics to you. Okay, so let's continue with the basics, and then we'll probably move on. तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी तक हमने क्या चीजें समझी है। अभी तक हमने ये समझा है कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड आपका 4 सेक्टर्स में अगर मैं बोलूँ डिवाइडेड है, तो वो 4 सेक्टर्स कौन से हैं? 4 सेक्टर्स आपके हो गए यहाँ पे, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, देन आपका हो गया फर्म्स, ये आपकी हो गई गवर्नमेंट, एंड आपका हो गया एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। तो अब ये सेक्टर्स की टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हमें कैसे पता चली? थ्रू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल कितना है इनका, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ओके, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ओके। लेकिन हमें ये भी पता चला कि ये सारी वैल्यूज प्लान्ड है, ठीक है, यानी एक्स एंटे, एंटिसिपेटेड, ओके। एंड हम कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं? केनेशियन। तो हमें एडी की इक्वेशन क्या पता चली? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स। एंड वाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड वाला जीडीपी? बिकॉज वो एक्सपोस्ट अकाउंटिंग आइडेंटिटी होता है। कौन सा? नेशनल इनकम। तो ये जो है, ये आपका ऐसा नहीं है, ठीक है। इतना पता चल गया, इतना हम समझ चुके। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करती हूँ आप लोगों के लिए एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड अभी हमने समझा इज इक्वल टू सी plus I plus G plus N minus X. I'll pick up the different components at different time. The major component is C. Now I am giving you a benefit that current affairs add कर रही हूँ मैं आपके लिए इसमें। current affairs ये कहते हैं, newspapers ये कहते हैं, articles कि consumption जो है, consumption forms approximately 60% of aggregate demand. This is what different reports and newspapers say. सो अगर 60% एडी का कंजम्पशन है, सो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा हुआ आपका? सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका कंजम्पशन हुआ। इसीलिए कितना आप अभी यू रीड, एंड आई ऑल्सो गिव यू एग्जांपल। इफ यू टेक चाइना का एग्जांपल, सो चाइना इज रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, प्राइसेस डाउन है, इन्वेस्टमेंट उनकी डाउन है, ठीक है, उनका जीडीपी ग्रोथ जो है इसी वजह से वो स्लो है। So what are they saying? They are saying they need to focus more on consumption. Why? Because if we talk of AD also, consumption forms a major percentage. And why do now I think you will be able to relate to the newspapers if you read it next time कि क्यों सारी गवर्नमेंट्स जब भी कुछ स्लो डाउन होता है तो एवरी आर्टिकल इज सेइंग दैट फोकस ऑन कंजम्पशन, फोकस ऑन इंक्रीजिंग कंजम्पशन, लोगों की हाउस होल्ड सेक्टर की कंजम्पशन बढ़ाओ। इसलिए बढ़ाओ क्योंकि सबसे मेजर कंपोनेंट कंजम्पशन होता है। तो हमारे लिए कंजम्पशन के बारे में पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू फ्रॉम नाउ ऑन, एंड आपके कॉन्सेप्ट से ही सब रिलेटेड होता है, कुछ भी बाहर से नहीं होता, ठीक है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से। अब अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं, मैं कंजम्पशन को ब्रेक डाउन करना चाहूँ आप लोगों के लिए, हम एनसीईआरटी में जो पढ़ने वाले हैं वो ये होगा आपका कि यहाँ से कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन आपका अगर मैं 2 टाइप की बात करूं, तो सबसे पहले ना एक तरह का, आप अब आपकी कंजम्पशन की बात करते हैं, पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं, उसके बाद कम्युनिटी पे लेके चलेंगे, सारे हाउस होल्ड सेक्टर की कंजम्पशन की बात करेंगे। अगर मैं सिर्फ आपकी कंजम्पशन की बात करूं, मे बी यू नीड सर्टेन मेडिसिन, मल्टीविटामिन और सर्टेन थिंग्स जिन पे खर्चा आप करोगे ही करोगे। आपकी इनकम जीरो भी हो जाए, आपको ये चीजें चाहिए, तो आप पुरानी सेविंग उठा लोगे। आपको किसी मंथ, आप स्टूडेंट हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप क्लास 12 या कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी देख रहे हो, तो पॉकेट मनी तो मिलती होगी, नहीं मिलती होगी तो मंथली कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलता होगा, ठीक है। अब आपको मंथली सपोजिटली 1000 रुपीज मिल रहा है एवरी मंथ, एंड यू हैव सर्टेन एक्सपेंडिचर्स, राइट? इंटरनेट का खर्चा देना है, वीडियो देखने का खर्चा देना है, ये सब देना है, ये सब आपके एक्सपेंडिचर है। तो इसमें से कोई एक्सपेंडिचर ऐसे है, जैसे आपको क्लासेस अटेंड करनी है, वो एक्सपेंडिचर मस्ट है, आपको करना ही है।
तो आप क्या करोगे कि एक महीने सपोजिटली आपको स्टाइपेंड नहीं मिला या पॉकेट मनी नहीं मिली, तो आप पिछले महीने कुछ सेव करके रखा होगा, उससे वो पैसे निकाल के ये चीज करोगे। इसका मतलब है ये आपकी वो तरह की कंजम्पशन है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती, आपकी इनकम जीरो भी हो जाए आप ये कंजम्पशन करोगे ही करोगे, irrespective of your income level. And even if income level goes zero, you will undertake this amount of consumption, and that portion of consumption is known as autonomous consumption. ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन किसे कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन उस कंजम्पशन को कहते हैं जो आप करोगे ही करोगे, इवन इफ योर इनकम लेवल इज जीरो। इनकम हम वाई को बोलते हैं, वाई से डिनोट करते हैं, तो अगर आपकी इनकम लेवल जीरो भी है, आप ये कंजम्पशन करोगे ही करोगे। ठीक है, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन नॉर्मली सी बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, सी बार से डिनोट करते हैं हम, कैपिटल सी बार से। ये इनकम पे डिपेंड नहीं करती। अब कुछ कंजम्पशन होती है, सपोजिटली इसका एग्जांपल दे देती हूँ, मेडिसिन होती है, कैंसर पेशेंट्स हो गए उनकी मेडिसिन होती है, या कोई भी और लोगों की जिनको भी कोई बीमारी है उनकी मेडिसिन होती है, खाना पीना, बेसिक राशन, ठीक है, इन पे खर्चा होता है। स्टूडेंट लाइफ में बोलूँ तो क्लासेस का खर्चा होता है, ठीक है, बेसिक ट्रैवल टू एंड फ्रो का खर्चा होता है, बहुत तरह के खर्चे होते हैं। तो ये हो गया। अब इसके अलावा दूसरे तरह की कंजम्पशन होती है जो आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब आपकी पॉकेट मनी 1,000 रुपए है, तो आपको अगर इंजॉय करने भी जाना है, आपको पार्टी करने भी जाना है, तो आप स्ट्रीट साइड मोमो के ठेले तक जाके सिर्फ मोमोज खा लोगे, वो आपकी पार्टी हो जाएगी, क्योंकि आपका मंथली पॉकेट मनी 1,000 रुपए है। ठीक है, जिसको मंथली पॉकेट मनी 10,000 मिल रहा है, वो किसी फैंसी कैफे में जाकर पार्टी करेंगे, वो कुछ बहुत ज्यादा मोमो प्लेटर लेंगे, तंदूरी मोमो लेंगे, अफगानी मोमोज लेंगे। Why am I talking of momos? Because most of my students love momos, so which is why I thought of taking that example. But yeah, I hope you understand the context that there's certain kind of consumption which depends on your level of income. आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, आपकी वो कंजम्पशन आपके इनकम लेवल पे डिपेंड करती है, राइट? उस कंजम्पशन का नाम होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन क्या होती है? एक सर्टेन प्रपोर्शन से आपकी इनकम जो है वो 1,000 रुपीज है, ठीक है, एंड आपने महीने का सोच रखा है कि आप 600 रुपीज कंज्यूम करोगे, 400 रुपीज सेव करोगे, राइट? सो आप कितना कंज्यूम करते हो हर महीने? 60%। सो यू कंज्यूम 60% ऑफ योर इनकम, राइट? सो दिस 60% को हम बी लिख देते हैं, स्मॉल बी। So small by is your induced consumption. That your income, the portion of income, this part of consumption depends on your income, right? So 60% is dependent on your income. So this is your induced consumption. अब अगर मुझे आपकी टोटल कंजम्पशन जाननी है, तो ये वाली कंजम्पशन है 100 रुपए की, तो आप मेडिसिन खरीदते ही खरीदते हो, रिस्पेक्टिव आपकी इनकम जीरो भी हो जाए, लेकिन 60% आप अपना इनकम का कंज्यूम करते हो बाकी का। तो इफ आई वांट टू नो योर टोटल कंजम्पशन, आपकी टोटल कंजम्पशन अगर मुझे जाननी है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी टोटल कंजम्पशन जो होगी वो होगी कैपिटल सी बार, ठीक है, विच इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एक्चुअली यहीं से शुरू करते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन, राइट? सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है? सी बार, प्लस आपकी इंड्यूस कंजम्पशन कितनी है? बी वाई। तो आपकी टोटल कंजम्पशन क्या हो गई? आपकी कंजम्पशन ये हो गई। तो मैं यहाँ पे कंजम्पशन आई लिख देती हूँ, आई आप हो, आई आपकी हो गई। पर मुझे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका जानना है? पूरे हाउस होल्ड सेक्टर का। तो पूरे हाउस होल्ड सेक्टर का टोटल कंजम्पशन मैं सी लिखूंगी, इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये होती है कंजम्पशन। ठीक है, अब इस कंजम्पशन में क्या होता है? सर्टेन कंपोनेंट्स होते हैं। इस कंजम्पशन में कंपोनेंट क्या होते हैं आपके? एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ओके। सो अब क्या हो रहा है आपका? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कितना हो गया? एवरेज। सो एवरेज में आपने क्या करा? टोटल कंजम्पशन का एवरेज कर दिया। तो टोटल कंजम्पशन का एवरेज आपका क्या आया? सी बाय वाई, कैपिटल सी था बाय वाई, राइट? लेकिन एमपीसी क्या होता है आपका? एमपीसी होता है आपका चेंज इन कंजम्पशन बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम. So when a certain portion of your income is dependent, so when your income is changing, supposedly मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी इनकम 1,000 रुपीज है, अब आपकी इनकम 1,000 है, आप उसका 60% कंज्यूम कर रहे हो,
व्हाट इफ नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, या सपोजिटली दिवाली का मंथ है, अब अगर दिवाली का मंथ है, आपके पेरेंट्स ने सोचा आपको पॉकेट मनी चलो इस महीने 1000 की जगह आपको 1500 दे देते हैं, तो आपका चेंज इन इनकम कितना हुआ दिवाली के मंथ में? चेंज इन हर महीने आपको 1000 रुपीज मिल रहे हैं, तो चेंज इन इनकम आपका हुआ 500 रुपीज, ये चेंज हुआ। अब आपका चेंज इन इनकम जो 500 हुआ, आप नॉर्मली जब 1000 मिलते थे महीने के तो आप 60% कंज्यूम कर लेते थे, तो इसका आप 600 कंज्यूम करते थे। लेकिन चेंज इन इनकम का आप कितना पार्ट चेंज करते हैं कंजम्पशन में? यानी आपको 500 चेंज हुआ है, तो जरूरी नहीं है ना कि इसका भी आप 60% ही इंक्रीज, दिवाली का महीना है, आपका भी मन कर रहा है खर्चा करने का, हो सकता है आप सारे के सारे 500 रुपए जो इंक्रीज हुए हैं वो सारे खर्चा कर दो। ठीक है, सो इसे ही हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच इज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। एंड इसका डिफरेंस होता है एपीसी से, कि एपीसी होता है आपका टोटल कंजम्पशन बाय इनकम, की कितना इनकम का पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो। ऑल राइट, दिस डिफरेंस इज क्लियर। ये दो कंपोनेंट होते हैं। अब इसी से हम, ये पूरी स्टोरी बिल्डिंग है, तो आपको ऐसा कुछ वियर्ड समझने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को ना जस्ट एक मैथमेटिकल मॉडल है, ये सी बी वाई लिखा होता है इसलिए कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन की कोई पॉइंट ही नहीं है, मैं सी से ही एस पे जाऊंगी, देखना। तो आप, अब आपकी बात हो रही है, तो आपकी इनकम मैंने कितनी बताई? 1000 रुपीज पॉकेट मनी है, इसका 600 रुपीज आप टोटल कंज्यूम कर रहे हो। अब आपका क्या है, बाकी का क्या कर रहे होगे आप? इन्वेस्टमेंट और ये सब नहीं सोचना अभी, क्योंकि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि चीजें सारी बाकी की कांस्टेंट रहेंगी। तो हम रैंडम रैशनल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचे, तो या तो कंज्यूम कर रहे हो या सेव कर रहे हो, तो सेव करोगे बाकी के 400 रुपीज। अब आप जो सेव कर रहे हो, ये कैसे आया आपका? y इज इक्वल टू सी प्लस एस, राइट? s का क्या हो गया? इसका मतलब s हो गया आपका y माइनस सी इज इक्वल टू एस। सेविंग कैसे आई? 400, 1000 में से 600 माइनस करे, राइट? सो जब आपके ये आ गए, अब अगर यही से सेविंग की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कैसे आती है? सेविंग की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आती है कि y, यही से निकालना है हमें, y इज माइनस सी, आपको पता है क्या था? सी बार, ओपन कर दो इक्वेशन, प्लस बी वाई, ये इक्वेशन थी, ठीक है, इज इक्वल टू एस था। तो अब आपने क्या किया? y माइनस सी बार, और यहां से भी माइनस कर दिया आपने बी वाई, ओपन कर दिया ब्रैकेट, सो माइनस सी बार माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस हो गया आपका। तो यहां से क्या हुआ आपका? अब यहाँ माइनस सी बार यहाँ ले आओ, वाई वाई तो सेम है, यहाँ पे इसको ले जाओ, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? वाई माइनस बी वाई। इक्वेशन ठीक चल रही है अभी तक, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, बेसिक मैथ्स है। इसके लिए ये भी नहीं है, बहुत बच्चे बोल देते हैं मैम मैथ्स ही नहीं है हमारे पास, जरूरत भी नहीं है इतना, तो मैथ्स 10th तक भी पढ़ के आए हो कि प्लस माइनस आता होगा, बस उतना ही है। ठीक है, सो माइनस सी बार प्लस, अब y बाहर ले लो, 1 - b y इज इक्वल टू एस। क्या आ गई आपकी? सेविंग की इक्वेशन। मैंने सिंपल कंजम्पशन इक्वेशन सिखाई थी, वहां से हम सेविंग की इक्वेशन पे आ गए। अब हम इसको नॉर्मली माइनस सी बार नहीं लिखते, हम इसे ऑटोनॉमस सेविंग बोल देते हैं। ऑटोनॉमस सेविंग क्या होती है? ऑटोनॉमस सेविंग हो गई, ऑटोनॉमस सेविंग भी क्या है? डिस सेविंग होती है ये। डिस सेविंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने कंज्यूम करना था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन थी, तो आप इनकम जीरो है, तो भी अगर आप 100 रुपए की मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो, तो कहाँ से कर रहे हो? पिछले महीने की पॉकेट मनी में से, पिछले महीने की पॉकेट मनी में से ले रहे हो, तो ये माइनस सेविंग हो गई। ठीक है, माइनस सेविंग डिस सेविंग हो गई, तो यही डिस सेविंग हो जाती है, तो ये -100 हो जाता है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सेम वैल्यू, प्लस 60% कंज्यूम कर रहे थे पहले। आप 60% क्या कर रहे थे? 60% आप कंज्यूम कर रहे थे, तो अब आपने क्या किया? 60% तो 40% सेव कर रहे होगे, कैसे आया वो? 1 - 0.6 y इज इक्वल टू एस, सेम इक्वेशन सेम वैल्यूज, तो आपका क्या आ गया? -100 प्लस 0.4 y इज इक्वल टू एस, ये सेविंग इक्वेशन आ गई। तो अगर आपको अभी पता चला हो क्लियरली, तो हमने क्या किया था? एडी हमने डिवाइड किया था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स में। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमें पता चला ये मेजर कंपोनेंट है, ये बहुत मेजर कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा चलो सी की बात करते हैं, टोटल कंजम्पशन। फिर हमें पता चला कि टोटल कंजम्पशन भी ऑटोनॉमस होती है और इंड्यूस्ड होती है। ये आपका फिक्स्ड होता है इवन इफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो होता है आपका, ये y पे डिपेंड करता है, इनकम पे। ठीक है, हम टोटल कंजम्पशन पे आए, यहाँ से टोटल कंजम्पशन हमें पता चली सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, और मुझे ये भी पता है
यहाँ पे कि y इज इक्वल टू एस प्लस सी, सेविंग प्लस कंजम्पशन। तो मैंने y माइनस सी कर दिया, मेरे पास सेविंग की इक्वेशन आ गई। और ये सब करके अगर मेरी कंजम्पशन की इक्वेशन थी सी बार प्लस बी वाई, तो मेरी सेविंग की इक्वेशन क्या आ गई थी, माइनस सी बार प्लस 1 - बी वाई। तो अगर मैं 100 रुपीज की मेडिसिन कंज्यूम करती थी और मैं बाकी का 0.6 यानी 60% जो है वो इनकम कंज्यूम करती थी, तो मैं सेव कितना कर रही हूँ, पहले तो मैं 100 रुपीज डिसेव कर रही हूँ और मैं 40% ही सेव कर पा रही हूँ, सो बेस इनकम का पार्ट। ठीक है, सो ये मेरी इक्वेशंस आ गई। मुझे कैसे पता चली, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। एंड सिमिलरली जब मुझे पता है कि सी में भी ये डिवाइडेड होता है, टोटल सी आपका एपीसी एंड एमपीसी में, तो सिमिलरली मुझे पता है एस भी डिवाइडेड होता है एपीएस एंड एमपीएस में। यानी ये तो हो गई आपकी टोटल सेविंग बाय इनकम, कंजम्पशन बाय इनकम, कि कितना इनकम का पार्ट कंज्यूम कर रहे हो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना इनकम का पार्ट सेव कर रहे हो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। लेकिन कितना चेंज इन कंजम्पशन है ड्यू टू चेंज इन इनकम, दैट इज एमपीसी, एंड कितना चेंज इन सेविंग है ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, दैट्स क्लियर। अब ये क्लियर हो गया है, हमको ये चीज पता लग गई है। अब यहाँ पे भी एक और चीज है, एक और कैच है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको ये देखना है, सबसे पहले देखो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। मैं एक चीज पे आऊंगी। ठीक है, दोनों साइड इक्वेशन, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, दोनों साइड y से डिवाइड कर दो, तो ये 1 आ गया, ये c बाय वाई आ गया, प्लस s बाय वाई आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू ये क्या है, ठीक है, और ये क्या है, तो 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस। ये आपकी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि जब आपकी इनकम चेंज होती है, चलो नीचे लेके चलती हूँ। जब आपकी इनकम चेंज होती है, तो उसका भी, जैसे 500 रुपए इंक्रीज हुआ आपकी इनकम में, तो उसका भी कुछ पार्ट आपने कंज्यूम किया, कुछ पार्ट आपने सेव किया। करेक्ट, सिंपल है, और क्या करोगे, यही करोगे। ठीक है, हो सकता है चेंज इन सेविंग जीरो हो, ये जीरो हो सकती है, हो सकता है कंजम्पशन जीरो, सारी की सारी सेव कर ली। अब मैं दिवाली के टाइम अपने फ्रेंड्स को सबको गिफ्ट देने जाती हूँ, तो मैंने तो सारी कंज्यूम कर ली, मेरी सेविंग जीरो है, चेंज इन सेविंग। लेकिन हो सकता है आप हो, आप कहीं बाहर रह रहे हो, कोई है ही नहीं, तो आपको जो इंक्रीज आया इनकम में, आपने सारी की सारी सेव कर ली, आपने कंज्यूम ही नहीं की, तो हो सकता है आपका चेंज इन कंजम्पशन जीरो हो। एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो अब क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड कर दो, अगेन ये एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड, ये आरएचएस। डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा, इसको हम ट्राइंगल जो है इसको डेल्टा बोलते हैं बोलने के लिए, इसका मतलब होता है चेंज, रिप्रेजेंट करता है ये चेंज। तो इसीलिए हम चेंज इन इनकम बोल रहे हैं, इसलिए हमने डेल्टा वाई लगाया। डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा एस चेंज इन सेविंग। ठीक है, अब आपने इस साइड भी डिवाइड कर दिया वाई से, और इस साइड भी डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या आया यहाँ पे, ठीक है, ये तो 1 हो गया, ये हो गया एमपीसी, ये हो गया एमपीएस। ठीक है, सो दो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, जो बुक में होती है, और सब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ दिक्कत नहीं है गाइस। एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। ओके, एंड अब एक क्वेश्चन भी आपके लिए, कैन कंजम्पशन आपकी जो टोटल है विच इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, कैन कंजम्पशन बी इक्वल टू जीरो, ये बहुत क्वेश्चन आता है, क्या जीरो हो सकती है, क्यों जीरो हो सकती है, एक बात बताओ, इनकम जीरो हो सकती है, अब कंजम्पशन की इक्वेशन क्या है, सी बार प्लस बी वाई। इनकम अगर जीरो हो भी गई, कोई इनकम नहीं मिल रही आपको, तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन जीरो हो गई। लेकिन ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो है, अगर 100 रुपए मेडिसिन के लेने हैं तो लेने ही है ना, वो खर्चा करने ही है ना, तो योर कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। कंजम्पशन इज ऑलवेज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, consumption can never be equal to zero. Okay, you have to understand this. ठीक है,
तो ये पार्ट होता है. बट कैन चेंज इन कंजम्पशन बी जीरो? ऑफ कोर्स. इंक्रीज इन इनकम हुआ है, अगर इंक्रीज इन इनकम थोड़े टाइम के लिए हुआ है, उसका हो सकता है आप सारा पार्ट सेव करना चाहो. ठीक है. तो इसका मतलब कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन कैन बी जीरो बट टोटल कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, बिकॉज दिस ऑलवेज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, right? There is always autonomous consumption even if income is zero. And since even if income is zero, there is a level of autonomous consumption because of which क्या होता है कि आपका total consumption can never be zero. ठीक है. And can consumption be negative? No. जब zero ही नहीं हो सकती तो how can it be negative? But can savings be negative? Yes. Why? Because saving का इक्वेशन होता है माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई. तो अगर इनकम जीरो भी हो गई तो भी आप ऑटोनॉमस कंज्यूम करने के लिए सेविंग में से लोगे, तो डिस सेविंग हमेशा होंगी. एंड क्योंकि डिस सेविंग होगी तो सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो एंड सेविंग कैन बी नेगेटिव. कंजम्पशन कैन नॉट बी नेगेटिव बट सेविंग कैन बी नेगेटिव. टोटल सेविंग क्यों? क्योंकि देख लो, सेविंग कब नेगेटिव होती है? जब इनकम आपकी जीरो हो जाती है. ठीक है. सो ये कुछ क्वेश्चन हमेशा आता है. कैन कंजम्पशन बी नेगेटिव? कैन कंजम्पशन बी जीरो? कैन सेविंग बी जीरो? कैन सेविंग बी नेगेटिव? ओके. कैन चेंज इन कंजम्पशन बी जीरो? कैन चेंज इन सेविंग बी वन? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका एमपीसी जो होता है दैट इज, एंड सिमिलरली एमपीएस. ठीक है. एमपीसी क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम. हो सकता है आप जितनी इनकम थी सारी की सारी 500 रुपए मेरे को इनकम इंक्रीज हुई, मैंने 500 के 500 खर्चा कर दिया, वन हो गई. या हो सकता है 500 रुपए इंक्रीज हुआ कंजम्पशन में पर मैंने कुछ भी नहीं खर्चा किया, मैंने सारी सेव कर ली, तो चेंज इन कंजम्पशन हो गया जीरो, तो वो हो गई जीरो. तो एमपीसी की वैल्यू जीरो से वन के बीच हो सकती है, इंक्लूडिंग जीरो एंड वन. एंड सेम गोज फॉर एमपीएस, इट कैन बी जीरो एंड वन. बट अगर मैं आपके एपीसी की बात करूं, consumption by y, can it be zero? Can apc be zero? How? Because consumption तो कभी जीरो होता नहीं, तो it can never be zero or negative. But can aps be negative? Yes. aps क्या है? सेविंग बाय y. सेविंग कैन बी नेगेटिव. ओके. सो ये चीज समझ आ गई आपको? ये सारे ही आइडेंटिटीज थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे. एंड आपको ये मैथ्स देखो, देखने में लग रहा है कितनी मैथ्स है, बट समझने जाओगे तो कुछ भी नहीं है. ओके. एंड दैट इज व्हाट्स देयर इन द एनसीईआरटी, राइट? दैट्स व्हाट देयर. एंड गाइस, आल्सो डिस्क्लेमर, आई हैव पुट अप टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. पहला ही लिंक टेलीग्राम का है. मैंने वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी की असाइनमेंट डाली है 30 मार्क्स की. जैसे बोर्ड का पेपर होता है बिल्कुल उसी लाइन पे. 1 मार्क क्वेश्चन भी है, 3 मार्क भी है, 4 मार्क्स क्वेश्चन भी है, 6 मार्क्स क्वेश्चन भी है. ओके. सो सॉल्व इट एंड सेंड मी योर आंसर्स देयर एंड आई विल डेफिनेटली रिव्यू इट माई सेल्फ एंड विल लेट यू नो कि हाउ यू कैन इम्प्रूव. बिकॉज ये बहुत पहले एनसीईआरटी में कवर करा चुकी थी इसका, लास्ट टू लास्ट वीक, विच इज वाई मैंने इसकी असाइनमेंट भी डाली है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस एज वेल. राइट. सो कंजम्पशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सारी ही चीजें बताना चाहती थी. और अभी ये कंजम्पशन का ग्राफ की मैं आपको बहुत प्रॉपरली समझाऊंगी. डोंट यू वरी गाइस, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. बट या जस्ट अ पॉइंट आप लोगों के लिए कि आई थिंक दिस चैप्टर विल कम इन 3 parts, not 2 parts. And yeah, so I would want to end this video here because my throat is gone. And yeah, so I think the weather is taking over. But yeah, we'll read from the NCRT remaining portion. I've cleared up your basics, so we'll resume it from here. And next part में हम NCRT से consumption and जितना भी ये part है सारा clear कर लेंगे. And graph समझेंगे, graph consumption का कैसे बनता है, saving का कैसे बनता है. ठीक है. वो सारी ही चीजें we'll understand. And then one session will come on Saturday, part 3. ठीक है. So yeah, I normally put up videos on Tuesday and Thursday 6 p.m. But another session will come on Saturday this week. This is for this week especially, part 3 of this chapter, because I want to get done with this chapter this week itself. So I'll cover this chapter and excess demand, excess जो आपका deficient demand, excess demand का केस है. And there's a portion in government budget जो हमने छोड़ दिया था क्योंकि वो इससे लिंक था. So we'll cover everything in the third part. All right. So I hope that's clear. And
I hope you found today's session useful. I would have skipped the video, but I didn't want to because it's a commitment from my end. So yeah, keep practicing, and I'll come up with part two on Thursday, 6 p.m. And I'll come up with part three of this chapter on Saturday, so that your entire chapter of ADNAS is complete by this week. Okay. So yeah, and keep sharing your feedback, and thank you for all the positive feedback that I'm already getting. Much appreciated. And take care, guys. Take care of your health, particularly. And yeah, I'll see you on Thursday. Bye bye.